Rahmatullahi wa barakatuh. It's me, Shmaila from class 9. It's me, Fajr from class 8. Today is 14th of November and we are going to host the Children's Day program on behalf of our school. It gives us an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. We welcome our chief guest, Ms. Fozia Paul, Subject Secretary, District Legal Services Authority, Srinagar, District Head Childline, Srinagar, Mr. Hakeem Javed, President Kashmir Kala Manch, Mr. Abdul Majid Wani, Advocate Said Mujtaba, Child Rights Lawyer, media personalities, our Principal Ma'am of the Sheikhul Alam Model High School, and the other guests. Quran Paran Kono Mudu, Quran Paran Kono Guisul, Quran Paran Kono Mudu, Quran Paran Kono Guisul, Quran Paran Zindu Kitrudu, Quran Paran Duz Mansoor. Before starting our program, I would like to invite Tahir on stage to recite some verses of Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. Bisma from class 7. Sallallahu alayhi ya Rasulullah
आशिना हो गया। कह रहा है खुदा खुद कुरान में, कह रहा है खुदा खुद कुरान में, कह रहा है खुदा खुद कुरान में, जो नबी का हुआ मेरा हो गया, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया। नूर से नूर का रास्ता हो गया, नूर से नूर का रास्ता हो गया, नूर से नूर का रास्ता हो गया, जो नबी से मेरे आशिना हो गया, जो नबी से मेरे आशिना हो गया। मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का, नबी से मेरे आशिना हो गया। अबर रेशी अहमद रेशी दईम उवैस करने आओ, अबर रेशी अहमद रेशी दईम उवैस करने आओ, रहीम रेशी जुल्का रेशी सूरम हजरत पलास आओ, रहीम रेशी जुल्का रेशी सूरम हजरत पलास आओ, मुंजिम रेशी रुम रेशी शहीद हजरत मीरान आओ, मुंजिम रेशी रुम रेशी शहीद हजरत मीरान आओ, सत्यम करीम दिशा ऋषि बने कुंत में क्या नाम। Now we are requesting our principal ma'am to come on the stage and address the guests. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. It gives me an immense pleasure to welcome you all on this auspicious occasion of Children's Welfare Day, or the Children's Day itself. The 14th November, which is celebrated all over the India, and we are celebrating it here in your presence. I welcome Chief Justice Sahiba, Justice Fawzia Pal, Secretary District Legal Services Authority, Srinagar, her team, which are all associated with the legal concerns of our students, the children all over the Kashmir, J&K Kashmir, in charge Children Helpline, Hakim Javed Sahab, his associates, all the dignitaries, all the students, all the staff of the school, and all the children today of the J&K and India, J&K particularly, and India in general. I welcome you all on behalf of my management, headed by Minister Kamran Hussain Shah, our staff members, the team in charges, and the students of the school. And I request you all to witness the program here with patience and do the more. जो कोविड की बात रही तो कोविड के दौरान हर दफा हर जगह हर ऑफिस में लॉकडाउन का बोर्ड लगा था, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड के दौरान भी बच्चों के लिए काम करती रही, वो चाइल्ड लाइन
श्रीनगर हो या अनंतनाग हो या बड़गाम या जम्मू या मुंबई हो या कोई भी हो। और उस दौरान हमने बच्चों को देखा कि क्या बच्चों की कैफियत क्या है, बच्चों की हालात क्या है। जैसा कि उन्होंने कहा कि इतनी काले हमें मौसूम हो गई। सिर्फ बच्चों का मुराद था कि बच्चे पीछे बिखर रहे थे, उन्होंने बच्चों के पास कोई साधन नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने घर घर जाकर, हर मोहल्ले में, हर इलाके में जाकर बच्चों के साथ इंटरेक्शन की, बच्चों को बाहर निकाला, एसओपीज के तहत अपने इंस्टीट्यूशन पे लाया, अपने मतलब जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे लाया, और बच्चों को स्पोर्ट्स जो इंडोर गेम्स है वो प्रोवाइड कर दिए हमने, ताकि बच्चों की ज्यादा से लग रहा है कि थिएटर एक अगर बच्चे थप कर असल पर बोझ जान दो। और अभी एक आपके लिए एक छोटा सा नाटक भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब आप खामोशी के साथ सुनेंगे, क्योंकि तैसे में पता तो एक काम चीज हो रहा है सारी तम सुखदार कि ना तुम असल पे पढ़न, तुम असल पढ़ो। फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, कश्मीर कॉमन और अपना ये स्कूल जो है शेखुल आलम मॉडल हाई स्कूल, इन चारों की वसातत से आज हम यहाँ पे चाइल्ड लाइन से दोस्ती का वीक मना रहे हैं। और ये जिनके लिए हम मना रहे हैं, अगर वही शोर करते रहेंगे तो मनाएंगे हम क्या। इसलिए अगर आप खामोशी के साथ और अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर कीजिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीजों के साथ, न कि लटन मस्ती करो और कनस मस्त तरीके। Now I would like to invite Kashmiri group from students on stage. Javed sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rab azme saad dam sarwar chiyat pirware. 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 Dil da chiyat sone chaman khud sa chiyat sone chaman. Dil da chiyat sone chaman khud sa chiyat sone chaman. Dil da chiyat sone chaman khud sa chiyat sone chaman. Dil da chiyat sone chaman khud sa chiyat sone chaman. Ya Rab faz dil maaz bar narwar chiyat pirware. Ya Rab azme saad dam narwar chiyat pirware. Ya Rab faz dil maaz bar narwar chiyat pirware. Ya Rab azme saad dam narwar chiyat pirware. Aftab razlavi soni sakul gulzar mushkavi soni sakul. 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 Ya Rab gul gulzar dam narwar chiyat pirware. Ya Rab azme saad dam narwar chiyat pirware. Ya Rab gul gulzar dam narwar chiyat pirware. Ya Rab azme saad dam narwar chiyat pirware. Yiç nundre şunund bon vatan, yiç son vatan, yiç son vatan. Yiç nundre şunund bon vatan, yiç son vatan, yiç son vatan. Yiç nundre şunund bon vatan, yiç son vatan, yiç son vatan. Yiç nundre şunund bon vatan, yiç son vatan, yiç son vatan. Ya Rab al mukbash dam narwar chiyat pirware. Ya Rab azme saad dam narwar chiyat pirware. Ya Rab al mukbash dam narwar chiyat pirware. Ya Rab
में ताज तम नरवर चेत पिरवारे यार बज में ताज तम नरवर चेत पिरवारे यार बज में ताज तम शर कर आरमच पिरवारे यार बज में ताज तम शेखुल आरमच पिरवारे यार बज में ताज तम शेखुल आरमच पिरवारे Nabis'in davet Ahmet Çıkarsın, Mehter Çıbasa Nuri Nur. Nabis'in davet Ahmet Çıkarsın, Mehter Çıbasa Nuri Nur. Bana hal müşkil beni sarin halat, Mehter Çıbasa Nuri Nur. Siyarsa gumere. Kotsa ka yake? Ateş vak. Mozo idi şuna. Aa, bedras. Chalo bir baba sawala. Hey yarasa. Ay parayı şahmat mısın? Gelme kadrımı doğayes ne var? Muz gayı başın. Rahat. Dumesa. Akkat var. Gel. Ot ağal özene ka. Busan. Maçı doğa neran point lagay bana. Geldi karım saval zonu muz dizmayı. Zanam ya balay. Sıtağımız bu. Baksın bana. Bolsan jal asıl meeting कैसे दफ्तर है Masa hak sahibi ben sesin olsun. Dağıtıcı kadar saval. Aa lagi bedah saya kata saya. Khodaya kurma Biasa saval. az der lebih apa? Az der lebih apa? Ansa niyetin. Biar apa salah. Hay. Bak sen yeni kadro bağırıyor suyu başın. Beşer yavaşça kam khayal tavın. Sen sana band khayal tavın. Ben क्या देख रहे थे? Onu koymaşı. Ben kamsi tuşak paylan. तो मैं ऐसा Yasa. कैसे लगे वो भाई से जू लगे बनाए लगे बहुत आलो मत आज तक करा मैं सोचूं कोई नेरा पता पाई Yukarıda galat çetişmeyi onu bırakın. Ya go. Dudu da? बिहार बस से एक कौन सा के चल चल से लगे पता Sen de gel zaman sen de haber şey halat kara. सीधी ऐसा कैसे पकड़ जोर ना था भाई अच्छा बिहार बस अच्छा बिहार बस Hatta yuvarısa. Bana ben şuna yağdaşkam zor. Yukarı mobil maşın. Ay numarayı da açılaga insanız. बताइए जूम अंदर या फरन टाइम Ne bana. हाँ Oğlum ya. किचन लेके वो नहीं ये पोत आलो मता आस्त करा रात ऐसा करो पोत आलो मैं पे तीसा बेइज्जती अगर मैं टाइम इस ब्रोट का नहीं आ सकता डकर था वो एक कर बदरास है यार बाबा साहब Niye kadar? Ya babam aşırı sazrastı var. Ya karıta almaslayacağız. ये दरास है ऐसा कोई सपना हाँ बदरास है Sen deli korumak kadar. Hey loktar. क्या देखिए Sana daha yok. Hayır sabır kızım. Sabır kızım. Hep yapan koymaşım. हैं Ne kız? Ya kız. कहाँ ये Hamza geldi bir ama ben adres durmam. Az daha speaking. Koyucu gaz. You go? Your friends. मोबाइल You go? You क्या go? Awal lagi. You क्या go? Mobile. Sorry ya. Az क्या कहे? Az देते पोता लो. तवाल şunu. Kotsa. तुम ऐसा है? Kotsa कहे के मैडम? Balsa az balsa. कैसा कर रही? Allah Teala çok sıkılan gün bu. Manda. Rasa ya? Kadayas korumak hava. Niye lagi bak? Az mı कर पोता लो? Koçi. Sigurd की फैन? हैं? Çakot. ये क्या गो? Onu. ये क्या गो? Kuzu. ये क्या गो? Numaya. The story? Biar masalah lagi belakang. Hey, damay hasa. Tasa yumurin.
चुक दुश्मन बात खन ठीक ठीक दवा फली ना खेत Louder, please. दवा दी क्यों हे मे वन थस आख कथ मैं शु दफ्तर गसुन पे हे दमा हस ये दम्मय नसा मैं प्याज तकदीर कुछ छत गिर गई तब दा छत ये सिनियर सकमो दमा आख से बस तशी दफ्तर गसु आ चुक ठीक आज है आत्मार
यहाँ पे आज जो पॉपुलेशन में देख रहा हूँ, इट इज़ टोटली डिवाइडेड। आगे जितने भी अवलीन सफ़े में बैठे हैं वो सारे एडल्ट पॉपुलेशन से हैं, और जो लास्ट के 5 रोज में बैठे हैं वो हमारे प्यारे बच्चे। दरअसल दिन जो मना रहे हैं हम वो बच्चों का दिन है, बट आपके तई जितने भी मसाइल हैं या आपके तई जितने भी हुकूक हैं वो हमसे वाबस्ता है, उनकी जो डिपेंडेंस है वो हमसे है। सो जितने भी मैं बातें करूंगा मैं मुखातिब करूंगा अपने एडल्ट पॉपुलेशन को, और इसी से आपको अपने हुकूक के बारे में उजागर करूंगा, सो दैट कि दोनों पॉपुलेशन पे मेरा टारगेट रहे। देखिए, जब भी हम ग्लोब को पूरे पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बीइंग मुझे लगता है कि पिछले 7 साल से मैंने खाली एक ही स्ट्रीम पे काम किया, दैट द चाइल्ड प्रोटेक्शन, फ्रॉम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके अभी मेंटल हेल्थ राइट्स प्रोटेक्शन पे। सो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जब मैं बीइंग एन इंडिविजुअल पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करता हूं, एक राइट साइड से मैं एडल्ट पॉपुलेशन को रखता हूं और लेफ्ट साइड से चाइल्ड पॉपुलेशन। बट जब हम चाइल्ड पॉपुलेशन के मसाइल देखते हैं वो सारे के सारे जब हम जिम्मेदार पाते हैं वो एडल्ट पॉपुलेशन। सो चाइल्ड राइट्स के बारे में अगर उजागर करना है तो एडल्ट पॉपुलेशन को करना है। हमारे वादी कश्मीर में वी हैव अडॉप्टेड मल्टीपल कल्चर्स। एक कल्चर के बारे में बताऊं, दैट इज द कल्चर ऑफ डिनाइल। हम मानते नहीं है, बट आज इस डाइस के जरिए से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, उन तक बात पहुंचाने के लिए मैं जरूर कहूंगा कि वादी कश्मीर में बहुत सारे बच्चों के मसाइल ऐसे हैं जिन पे या तो माँ बाप बात नहीं करते, या तो डिपार्टमेंट्स एक्नॉलेज नहीं करते, या रिड्रेसल के लिए जो मैकेनिज्म बैठे हैं वो इदारे अभी तक फेल हुए। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे अभी भी स्कूल हो, इंस्टीट्यूशन हो, फैमिलीज हो, या और भी सोसाइटी के दीगर एजेंसीज हो, वो अभी भी ये नहीं मानते कि हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस हो रहे हैं। बट लास्ट ईयर जब हम अपने डेटा देखते हैं, ऑन रिकॉर्ड वी हैव मोर देन 353 एफआईआर्स रिगार्डिंग द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस। और जब इन 353 जब हम इनके एनालिसिस करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि 90% ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या हैरेसमेंट हो, ये विद इन द इंस्टीट्यूशंस होते हैं। विद इन द इंस्टीट्यूशंस आई मीन टू से, या तो फैमिली में होगा, या फिर स्कूल में होगा, या तो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होगा। सो आपसे ये बात करने का दरअसल मकसद ये है कि ये जो कल्चर हमने अपनाया है कि वादी कश्मीर में ये चीजें नहीं हो रही है, बट आज की डेट में ये सारी चीजें हो रही है। तलख हकीकत मैं इन बच्चों के सामने वो चीजें नहीं रखना चाहूंगा, बट आपकी मेमोरी को ताजा करने के लिए 2 महीने लास्ट 2 मंथ्स का अगर हम देख लेंगे सर्वे कि विदाउट नेमिंग द डिस्ट्रिक्ट को अच्छी ब्याक चीज कि यम साथ इस पर कुछ चीज पे कत कर बासान शायद नॉर्थ इन्वॉल्व, और नॉर्थ वाले कहते हैं साउथ वाले इन्वॉल्व हैं। और बात यह है कि 6 महीने की बच्ची के साथ जब एक घर का फर्द ही जिनसी कहें कि ये शुरुआत को अरदास मज बिलोंग करा सो दैट कि ये करवन कुछ जाए बदल ट्राई, बट हमने इस बच्चे को जो इंसानी शख्सियत है, क्या हमने इनको इंसानी शख्सियत दी? इंसानी शख्सियत से मेरा मुराद क्या है? अभी मेरा नाम अनाउंस हुआ, सभी गए खामोश, ठीक है? क्यों? हमें मुश्तबा को सुनना है। अब इसके बाद मुश्तबा को चीजों को देखने का नजरिया अलग होगा, हकीम साहब का अलग, मैम का अलग, ठीक? अब इसके बाद हम किसी बच्चे को बुलाएंगे, इसी मौजू के तहत इसको बताएंगे कि मौजू पढ़ने का, तो उस बच्चे का जो चीजों को परखने का एक अंदाज निराला होगा और अपने एज अप्रोप्रिएट वो चीजों को और ये एक्सप्रेस करेगा। बीइंग एन एडल्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बच्चे को स्पेस दें। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल दो ही थे, जब मैं एडल्ट तो कर सो जज, हमें जज करना है इस बच्चे को उसकी एज के मुताबिक, ठीक? ये दूसरा मसला हुआ कि ये साथ मैं सोशल स्पेस की बात कर रहा था। कोविड-19 के जरिए से बीइंग एन एडल्ट हमें भी नहीं पता था कि इस कोविड के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक? 2 मिनट में बात खत्म करूंगा, ठीक है? सो दैट ये डिस्कशन डिस्टर्ब किया। कोविड में बीइंग एन एडल्ट हमें भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि स्टिकिंग करो आज कोविड से डील, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यूनिसेफ हो या कोई ऐसे हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने हमारे सामने बहुत सारे एडवाइजरीज रखी, ठीक? बट क्या हमने वो एडवाइजरीज हूबहू इन बच्चों तक पहुंचाई?
मुझे लगता है कि जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, लॉ या बाकी चीज वो एक तरफ थाओ, इमेजिन द सिचुएशन कि ये साथ अकिस घरस मजन मालिस या माज गो कोविड और ये छोटी बच्ची को कह रहा है कि रोज बेकिस कमरस पे रोज ताकि इसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे कितना असर पड़ा होगा ऑब्वियसली। जमा उस आफ दो, मैं अपने घर की बात करूं, मैंने अपने बच्चों को बोला कि 14 दो लेके उतरे में मुझे, अब उसका जो तनाव है वो हमारे बच्चों में अभी भी है, वो एड्रेस अभी भी नहीं हुआ। वो एड्रेस किनको करना था? या तो माँ बाप को करना था, माँ बाप में भी इतनी सलाहियत है नहीं। सलाहियत कौन सी? उनमें वो सलाहियत है नहीं कि हम साइको सोशल या मेंटल हेल्थ इश्यूज इन बच्चे में आइडेंटिफाई कर सके। अब ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी? असातिज़ा किराम की। अब असातिज़ा किराम पे भी कितनी क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इतनी ट्रेनिंग्स या इतने सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स टीचर्स के साथ किए? बच्चे दूर थे, टीचर्स और बच्चे सेपरेट थे। मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट मैं जनरल कह रहा हूँ। ये तो आप ही का कंट्रीब्यूशन है कि हमारे बच्चे आपके पास लाइक सेफली है, बट ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ कि क्या इस टीचर में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं ये क्लासरूम मजन 40 या 50 बच्चे किसी बच्चे के बुथिस पे मायूसी रिफ्लेक्ट गया, क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग इस टीचर में है कि इस सब्जेक्ट के बाद का कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज का? अच्छा जिम्मन पे मैं पढ़ नजर, ये जब अभी सिकिट कर रहे थे, ठीक, अब आप लोग अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है, ये सारे घरानी हकीकत है ना, जो आप रोल 2 मिनट की खामोशी में आपसे चाहूंगा। चाइल्ड लाइन फाउंडेशन का एक मकसद है, आप बोर होंगे मेरी बातों से, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन का एक मकसद है कि कोई भी बच्चा जो किसी भी मदद का तलबगार, किसी भी मदद का तलबगार मतलब चाहे एजुकेशनल नीड्स हो, प्रोटेक्शन नीड्स हो या कोई और भी ह्यूमन नीड्स हो, वो इस 1098 को कॉल कर सकते हैं। कोविड का पहला जो लॉकडाउन हुआ था दैट वाज ऑन 20th of March 2020। 20th of March से लेके 1st of April तक ये टोटल कहा 10 हमारे, ठीक है, कहम दोहन मजन छे चाइल्ड लाइन ऑफ इंडिया ने दे हैव रिसीव्ड मोर देन 98,000 कॉल्स। इट स्पीक्स कि हमारे बच्चे किस Respected Principal, Sheikhul Alam School, Hakim Javed Saab, Child Line Srinagar, all other teachers present here, my staff, Advocate Mustafa, the media, and people from the foundation, Health Foundation, and Kashmir Kala March participants, and my dear children. Happy Children's Day to all of you. I can't hear you. Happy Children's Day. Thank you, ma'am. Now that's like it. मुझे पता है सुबह से आपको सबने बोर किया, जबरदस्ती बोल रहे थे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, चुप करने के लिए, बट मुझे पता है बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनको जितना आप चुप कराओगे ये ज्यादा बोलेंगे, है कि नहीं? सबसे पहले मैं सारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन भी बच्चियों ने यहाँ पे परफॉर्म किया उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। That was a wonderful performance, wonderful. लेकिन एक शिकायत मेरी है, मैंने किसी भी लड़के को किसी इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा। Very bad. I'm very disappointed by the boys. लड़कों को कुछ नहीं आता, सिर्फ शोर मचाना आता है। चलिए, God bless you all. मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही ज्यादा बोर हो गए होंगे एक ही जगह बैठ के। When I came here, it reminded me of my school days. I was also a very active participant in all the co-curricular activities, including sports. तो आज यहाँ पे आके लगा कि सचमुच में जैसे मैंने अपना वो कहता ना चाइल्डहुड रीलिव किया है, आज बिल्कुल वैसी एक फीलिंग आई है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बच्चों को आज चिल्ड्रंस डे है, किसी ने ये नहीं बोला चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है,
कोई बता सकता है? हाँ जी बताएं। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चिल्ड्रंस को प्यार करते थे बहुत ज्यादा, इसलिए और वो कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी? चाचा नेहरू को चिल्ड्रन को प्यार नहीं करते थे। वेरी गुड। वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। चूंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत लगाव था, इस वजह से उनकी डेथ के बाद हर साल ये दिन उनका बर्थडे है। आज उनका 131st बर्थडे है। तो हर साल इंडिया में 14 को ये दिन मनाया जाता है एज चिल्ड्रंस डे। कोई मेरे हिसाब से हर दिन चिल्ड्रंस डे होता है। इसकी ये वजह है कि हमारा जो भी मुआशरा हमारा है, हमारी सोसाइटी है, ये सब डिपेंडेंट है बच्चों के फ्यूचर पे। अगर आपका फ्यूचर अच्छा रहा, सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए हम जब भी कहते हैं, एक बहुत ही फेमस सेइंग है, चिल्ड्रन आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। व्हाई डू वी से सो? बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी, आवर वर्ल्ड। अगर आप अच्छे से डेवलप होगे into a very good individual, one who will build the society, then the whole world will be a better place to live in. आप मानते हैं इस बात को? Yes, of course. मानते हैं? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। मगर ये सिर्फ ऐसे ही बोलने से नहीं होता है। जैसा कि हमारे स्पीकर्स ने आपको बताया, आजकल हमारा मुआशरा कितना खराब हुआ है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे स्किट के वक्त आपने देखा, जो कला केंद्र वालों ने आपके सामने स्किट पेश किया, कि माँ बाप जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते बच्चों का। ये भी उनमें से एक वजह है, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है। हमारे एडवोकेट जो मुस्तफा साहब हैं, उन्होंने आपसे कहा कि पिछले साल का डेटा जो है, 6 लाख बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं सब्सटेंस अब्यूज में। क्या आपको लगता है ये डेटा करेक्ट है? नहीं, इससे भी ज्यादा है। पूरे इंडिया में एक कैंपेन बनाया गया, क्योंकि इंडिया में जब देखा कि यूथ हमारा बहुत इन्वॉल्व हुआ है ड्रग्स में, तो एक कैंपेन लॉन्च हुआ। वो पिछले 2 सालों से चल रहा है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे सबसे ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज यूथ कर रहे हैं। श्रीनगर भी उनमें से एक है, बड़गाम भी उनमें से एक है। मुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं, यूनिवर्सिटी में भी हमने किया था, और वहां पर भी ड्रग अब्यूज से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट किया था। वहां की जो थिएटर सोसाइटी के बच्चे हैं, उन्होंने पेश किया था। उसमें भी यही दिखाया था कि बच्चे जो हैं आजकल बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। हाँ, पिछले 2 साल जो हमारे गुजरे हैं कोविड में, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है, आप यहाँ जो टीचर्स बैठे हुए हैं, आप पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं। ज्यादा जो बच्चे का फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है टीचर पे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा है, उसका नाम हुसैन है। He had written some word incorrectly. I told him, beta, this is not the right spelling. It spells like this. He said, no mama, ma'am has taught me like that. So you are not telling me the correct thing. So आप देखिए, मतलब बच्चों को जो है टीचर की बात एक होता है ना, पत्थर की लकीर। They'll think कि जो टीचर कहता है that is the best thing. तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जब भी अपने स्टूडेंट्स या बच्चों से बात करे, तो ये सोच समझ के करे, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो एक छाप छोड़ जाता है उनके दिल पे। बच्चों का दिल बहुत ही एक कहते हैं ना, एक सेंसिटिव सा पीस होता है। आप इसको जैसा मोल्ड करेंगे, ये वैसा ही मोल्ड होगा। हमारे बच्चों को हमारी केयर की जरूरत है। केयर इन द सेंस उनकी प्रॉपर एज पेरेंट एज टीचर दोनों को बिल्कुल। अगर आपको लगता है कोई स्टूडेंट काफी टाइम से नहीं आ रहा है, ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनके पेरेंट्स से पूछें कि क्योंकि नहीं बनती है, इट इज नॉर्मल। लेकिन बच्चों के सामने डिस्कस करना, एक दूसरे को अब्यूज करना फिजिकली, मेंटली, ये सारा जो है उन लोगों
पे उनका उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन बच्चों पे होता है। वही बच्चा आगे चल के स्ट्रेस लेता है, वही बच्चा स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश में ड्रग्स का शिकार हो जाता है। और सिर्फ यही एक वजह नहीं, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में, आपके रिश्तेदारी में कोई एक अगर ड्रग्स ले रहा है तो वो चाहेगा उसके साथ कोई दूसरा भी इन्वॉल्व हो। वो उसको आता है कि यार तू भी टेस्ट कर ले, इसमें बड़ा मजा है, ये है, कोई मासूमियत में भी लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो उसका एक एडिक्शन हो जाता है। हम उसको एडिक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप दोबारा नहीं लेंगे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है कि आपको अपनी सेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। फाइनली आप क्या करेंगे, आपको ऐसी तलब इसकी लगती है कि आप कहते हैं चाहे मुझे किसी का खून भी करना पड़े लेकिन मुझे ड्रग्स मिलना चाहिए। मैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सी न्यूज आपको बताती हूँ, मैं हालांकि बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज से वाबस्ता कराना चाहती हूँ कि ड्रग्स का क्या असर हो सकता है। अभी रिसेंटली एक एरिया में एक ड्रग एडिक्ट बच्चा था, बच्चा मतलब टीनेजर, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां को मारा। आप सोच सकते हैं किस हद तक ये उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसको उस टाइम पे ऐसा खुमार होता है, वो बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन में होता है कि उसको कुछ पता नहीं चलता उसके पास क्या है। उसको उस वक्त इतनी जरूरत महसूस होती है कि वो कुछ भी कर सकता है ताकि उसको ड्रग्स मिले, या फिर ड्रग्स लेने के चक्कर में क्या होता है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कमाता नहीं है तो वो चोरियां शुरू करता है, फिर वो चोरियां शुरू करता है, वो अपने माँ बाप का नाफरमान बन जाता है, बाहर चोरी करता है या किसी को फिर हर्ट करता है ताकि उसको उसकी जरूरत मिल सके। मैं आपसे कहती हूँ, इट इज अ वेरी 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 पेनफुल थिंग टू बी एडिक्टेड टू सच थिंग्स। आप चाहे भी तो आप इससे बहुत मुश्किल से निकल सकते हैं। हमारी स्टेट में कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, सिर्फ एक ही है जो पुलिस के अंडर है। रिहैबिलिटेशन इन रियल सेंस हो, जैसे हमें बाहर होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, इस पे भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज का कोई भी यहाँ पे ऐसा है। फिर आप देखिए ना, इसमें अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, माँ बाप कहाँ से लाएंगे, कितने नाजों से उन्होंने आपको पाला होता है, स्कूल में आपको दाखिला किया होता है, चाहे खुद वो कम पहने कम खाए लेकिन बच्चों को हमेशा बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। यू शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, वेरी वेरी प्राउड। दे हैव गिवन यू द बेस्ट दैट दे कुड नॉट हैव इन देयर लाइफ, सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग टू मेक देम प्राउड। अगर आप ये करते हैं, आपसे अल्लाह भी राजी होगा। और ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, आगे चल के और जिंदगी ठीक हो जाएगी। और एक बात मैं आपसे कहती हूँ, जो ये स्किट चाइल्ड लाइन वालों ने पेश किया था, स्टार्टिंग वाला, कश्मीर कला का तो अच्छा था, इट वॉज गुड दैट इट वॉज रिलेटेड टू ड्रग्स, एंड उसमें अच्छा दिखाया था कि पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते हैं तो ड्रग्स का शिकार बच्चे हो सकते हैं। लेकिन जो उससे पहला वाला वो था शॉर्ट स्किट दैट वाज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। रीजन बीइंग द वे द हस्बैंड टॉक टू हिज वाइफ, हम इसको मजाक में ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों के सामने ये चीजें पेश कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनको बोल रहे हैं कि हस्बैंड को ऐसे बोलना है और वाइफ को ऐसे रहना है। बच्चों के सामने वो चीजें पेश करें जिससे वो सीखे, वो चीजें नहीं जो कि गलत हैं और आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इवन अगर वो आप हंसी मजाक के तौर पे दे रहे हैं। तो मैं अगली बार मैं चाइल्ड लाइन वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऐसे प्रोग्राम्स ना दिखाएं, बच्चों के सामने क्या कहीं भी ना दिखाएं। हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी सोसाइटी को बेटर बनाना है, अच्छा बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? जब हम बच्चों को बेस्ट दिखाएंगे, वो चीजें दिखाएंगे जो चीजें होनी चाहिए, जिसकी वजह से सोसाइटी अच्छी होगी, वो नहीं जो सोसाइटी में सदियों से चलती आ रही है और जो ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप बच्चे हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है बड़े ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को, या चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, अगर आपको पता है
तो आप जाके अपने माँ बाप से बोलिए। अगर आपको लगता है आपके माँ बाप की उसको किसी नतीजे तक नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपनी टीचर से बोलिए, अपने प्रिंसिपल से बोलिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हमारे PIVs है, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हमारे इतने सारे यहाँ पे हैं जो घूमते रहते हैं, अवेयरनेस कराते रहते हैं। आप किसी से भी बोल सकते हैं। या अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपका नियरेस्ट कभी भी कोई आपको जैसे पुलिस मतलब जो पढ़ाई, चलो पढ़ाई के तौर पे चलो हाँ भेज दिया बच्चों को, पढ़ी लिखी फैमिली जो नहीं है वो उन घरों में सबसे ज्यादा चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। आपको पता है नेल्सन मंडेला जो है उनका एक कॉल है, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन दैट यू कैन यूज टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। सो अगर आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने बुक्स पढ़ी, एग्जाम पास किया। यू शुड हैव नॉलेज। नॉलेज का मतलब हुआ बाकी चीजें, जैसे आपको थियोरेटिकल तो आपको बुक्स से मिलता है, लेकिन नॉलेज इज समथिंग जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस कि अगर आप सोसाइटी में हैं तो आपको कंट्रीब्यूट करना है। आप कल को आप हमारी फ्यूचर जेनरेशन हो, टॉर्च बेयरर्स हो, तो आपको क्या करना है? आपको वही चीजें करनी है जिससे हमारा मुआशरा बेहतर बनेगा। आप सब ये चीजें करने के लिए तैयार हैं? पक्का? लॉक कर दिया जाए? वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। शायद मुझे भी मौका नहीं मिलता। मैं शुक्रिया करूंगी हकीम जावेद साहब का और मैडम प्रिंसिपल का कि मुझे यहाँ इतना इंटीरियर में आई हूँ आज स्कूल में आपके साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और एक चीज जो मैंने नोटिस की, जब मैं आई तो बहुत सारा प्लास्टिक रैपर वगैरह पड़ा हुआ था नीचे। दिस इज नॉट गुड। अगर आपको शुरुआत करनी है एक बेटर सिटीजन बनने की, देन यू शुड स्टार्ट नाउ। You don't have to litter across your fields and every nook and corner of your school. You should keep your school clean. मुझे लगता है आज मौसम तो चलिए खराब है, आज आपका चिल्ड्रंस डे है, मैं इसको ऐसे कुछ खराब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन tomorrow when you start your day in the school, you should come forward and pick up all the wrappers and all the whatever you have littered here and there and throw it in the dustbin. मैं मैम से गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज बाहर डस्टबिन एक दो लगवाएं, और बच्चों को एक दूसरे को भी, अगर कोई आप देख रहे हैं कोई यहाँ गिरा रहा है कोई छिलका या रैपर वगैरह, तो उसको डांट लगा के अपने कैंपस को क्लीन रखिए। आपने सुना है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारे इस्लाम में भी कहते हैं सफाई सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह को। तो क्यों नहीं हम सफाई से मतलब सिर्फ अपने आप को साफ रखना नहीं है, अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना है। ठीक है? तो मैं आप सब लोगों को फिर से, बच्चों को स्पेशली, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मे यू शाइन लाइक द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे, अच्छी स्टडीज से नवाजे, और मे यू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर ब्राइटेस्ट फ्यूचर इन फैक्ट। थैंक यू सो मच। 10th क्लास के बॉयज हैं, उनको हमें अवार्ड्स देने हैं जिन्होंने हमें कैंप में सबसे बेस्ट काम किया है। ये कैंप हम हर साल दरगाह हजरतगढ़ में लगाते हैं, और उसमें कुछ बच्चों ने जो हमारे 10th क्लास के हैं बॉयज, उन्होंने हमें स्कूल को हेल्प किया है, सबसे बेस्ट अपना दिया है। तो आज चिल्ड्रंस डे पे हम उनको मेडल्स देना चाहते हैं। तो यहाँ से आगे से आ जाओ। असरात यामिन, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, जोर से क्लैप्स करें। यहीं पे खड़े रहिए, पीछे पीछे खड़े रहिए बाकी बच्चे। और दो बच्चे हमें क्लास 8 से हैं, बुरहान, जबरदस्त, बाकी तौसीफ, बाकी तौसीफ,
बच्चे हैं जिन्होंने हमें उस मुश्किल वक्त में स्कूल का साथ दिया है और उस कैंप को कामयाब बनाया है। नहीं, ये नहीं, बस इतने सारे। आप लाल साहब प्लीज इनको मैम के साथ फोटोग्राफ आप रखिए। यहाँ पे एक आगे 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 मैडम आइए, आइए आइए। يطلع حالي فوق الزالي تلك الزالس ألف تدين يطلع حالي فوق الزالي تلك الزالس ألف تدين بركة بلوز سكت بالي سوري ألف ألف لام ميم. Now I would like to invite students of junior department to present a welcome song.
I would like to invite Mr. Hakeem Javed, District Head Childline Srinagar, to brief about Childline and its services. बगर कशिर पटी का ठीक है आज यत मजलिस में और ये हमारी मजमत गसेस कोशिश ते डाले परवाश नहीं किया है उर्दू की कोशिश ठीक है लड़स माइक को मैं इसको हाँ आज इस वैसे मैं नहीं चाहता था कि आपके क्योंकि ये आज का दिन जो है ये नेशनल चिल्ड्रंस डे है और ये दिन आपका है और हम नहीं चाहते थे कि आपके इस दिन के बीच में हम घुसे लेकिन क्या करें आदत से मजबूर है तो इससे पहले कि हम अपना कहना शुरू कर दें अपना बोलना शुरू करें मैं तहे दिल से शेखुल आलम पब्लिक स्कूल जो हमारा है ये मैं नहीं समझता हूं कि ये कहीं किसी और का है बल्कि मैं समझता हूं कि ये हमारा स्कूल है और जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा है इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जब भी बच्चों के हित के लिए हमने कोई काम करना चाहा तो इन्होंने हमें अपने दिल के दरवाजे सुकून के दरवाजों के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे खोल दिए और उसकी मिसाल आज ये दमाग तहरीम कसन पत कन करें तो मुखाल वगैरह ब्रोड करें मगर मका दश में चीज ब्रोड करती मैं फौजिया जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन्होंने हाल ही में जलसा ज्वाइन किया है और मुझे लग रहा है कि शायद पहली फंक्शन आपकी होगी ये दूसरी फंक्शन इनकी है और इनकी लगन बच्चों के साथ देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि पूछे मत कि इन्होंने इसरार किया कि बच्चों के लिए हम कोई प्रोग्राम करें क्योंकि चिल्ड्रंस डे तो कहीं नजदीकी है तो हम इस दौरान कुछ करना चाहते हैं तो उसे पता चलता है कि हम बत बानो शुट हां तुझे नरन के बात क्या है और वो हमें पता चला कि फौजिया जी का बच्चों के साथ कैसा मतलब क्यों छुयून रवि क्यों छुयून दिल क्यों छुयून मिजाज वो तो हमें पता चला ही मैं आज के इस प्रोग्राम में अपनी चीफ गेस्ट मोहतरमा फौजिया पाल सब जज और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इनके साथ हमारे फारूक साहब हैं और इनके बाकी जो मेंबरान हमारे हैं और देर में नजर पड़ी मुझे मुस्तफा साहब पे मुस्तफा साहब को भी मैं इस मजलिस में वेलकम करता हूं आज का दिन जो है चाइल्ड लाइन खासकर जब से चाइल्ड लाइन वजूद में आया है 1995 में एक सिंगल लाइन से और मुंबई से इसकी शुरुआत हुई और स्ट्रीट बच्चों पे काम करना शुरू किया था एक लाइन जुड़ते इस वक्त 772 डिस्ट्रिक्टों में चाइल्ड लाइन काम कर रही है इसमें JNK के 13 डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है और खासकर कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बड़गांव डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग इन 4 डिस्ट्रिक्टों में चाइल्ड लाइन रवा दवा है और आज के दिन के हवाले से मैं आपको इस दिन की थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ हम सिर्फ नेशनल चिल्ड्रंस डे ही सेलिब्रेट नहीं करते हैं बल्कि इसके साथ साथ 17 तारीख को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे होता है वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं यानी 14 से लेकर 21 तारीख तक हमारी सरगर्मियां चलती रहेंगी लेकिन सरगर्मियां सिर्फ मतलब बिगोस्त आसन चुकी कथा कथनी और करनी ये चीज आगो कथा करनी बागो कारण अमली तौर और हम कोशिश करते आए हैं क्योंकि चाइल्ड लाइन श्रीनगर की शुरुआत 2011 में हुई है और 2011 से लेकर आज तक अगर हम गिनते जाएंगे तो कम से कम 3-4 हजार 5,000 के करीब केसेस हमने किए हैं
लेकिन वो हमारी तिस कथा कि बह मान बहुत सह खुश किस्मत पे जाए कि बहुत वन कि 3,000 या 4,000 केस कर एक हिसाब अगर वो ये हमारे लिए एक बदनुमा दाग है कि केस है और हम चाहते हैं कि ये गस काउंटिंग ही कुन जाए कर कि केस जैसे कि हाल ही में जब हम चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट कर रहे थे मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे तो उस दिन मैंने ये कहा कि ये दिन ही ना हो इसके मनावो युद्धो इसके करो युद्धो वो ये चाइल्ड लेबर आसे ये तिम अखरात ये किसै आसन युद्धो मनावस खतर क्या गसो मजबूर गो काज आज वजह ये कि आए दिन तफरुकात बढ़ा आए दिन पन्ने जिंदगी निश दूर गसान ये दूर कित पे गसान ज़हनी तनाव दो दो कुरान पन्ने जाए मगर पान बजात खुद यमन ज़हनी तनावन पन्ने दिमागन में जाय दिवान दैट्स व्हाई कि यूता करान वो चूंकि अजुक दह या दोहस मज क्या हेको आज क्या क्या हेको कर कोशिश की इत पे बड़े वो कि या दोहस दरमियान ये मोहन तह कहें कोशिश कर कि आज गोस डाइस मिल तमसी बचस दह ताकि बच्चे ये आज होस्ट करान तो यमने तवो सोरी मगर ये रोज ये करो शुरू बे थोड़ा बहुत त्रोस रचीना तम मतलब मल्टीपल प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू नलसा थोमुत या मुश्तबा सब कर किस्म का बयान गुजी या वन मगर कोशिश कर करो थोड़ा बहुत कह समाजी बिदत वुचान दह शिकार बनान तथ कर कोशिश करो ड्रामाटाइज तो ड्रामाटाइज कि सोच में मजीद वानी सब आमत एज ए प्रेसिडेंट कश्मीर कलामेंट नज़ीर हरगोल सब जोजिया जी हमीद सब तारिक सब या जहांगीर फराज सब आमत पन अक्सर करो सह दिलस में सह जज्बा बचन खतर कि यह वनकस समाज मज गम खास कर मोन बच्चे मुतासर गसान करो थोड़ा बहुत रोकथाम यह रोकथाम गि माने अक सह बल्कि ये